Good morning, everyone. Our today's poem is Hiroshima, poem by Agaye. So let's begin. Hiroshima. But poem begin करने से पहले I hope we know what was Hiroshima. Hiroshima एक जापान की छोटी सी शहर का नाम है एंड हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया था जो ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है एंड ये जो पोएम है अगे ने जो लिखी है ये उसी दर्दनाक हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड है. सो ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट atomic explosion that has happened in Hiroshima, this poem has been written. Okay, so this poem was originally written in Hindi by Agay and then finally it is translated by Agay and Nathan. तो ये ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई थी एंड उसके बाद इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. We will see both the version. I will show you the English version as well and I will also show you the Hindi version of the poem. Okay, so let's begin first with the English version. On this day, the sun appeared, no, not slowly over the horizon, but right in the city square. So here, the very first line, उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है from the very beginning. What day we are talking about? The day when atomic explosion happened in Hiroshima. So उस दिन क्या हुआ? उस दिन sun appear हुआ, लेकिन होराइजन से स्लोली नहीं. सो नेचुरली सन कैसे उगता है? होराइजन पे स्लोली सन उगता है. सुबह के टाइम पे आपने नोटिस किया होगा. बट उस दिन कुछ अलग था. उस दिन सन सूरज से नहीं निकला, उस दिन सन होराइजन से नहीं निकला, उस दिन सन सिटी स्क्वायर डायरेक्ट शहर के बीच से निकला. क्लियर? बट राइट इन द सिटी स्क्वायर. एंड हियर व्हाट इज सन कंपेयर्ड टू? It is being contrasted with the atomic bomb explosion. जैसे सूरज की रोशनी होती है वैसे ही एटॉमिक बॉम्ब की भी रोशनी थी, पर वो रोशनी को सूरज के साथ कॉन्ट्रास्ट में किया गया है कि वो होराइजन से नहीं बट शहर के बीचों बीच से रोशनी निकली. A blast of diesel poured over. एक ब्लास्ट हुआ. Not from the middle sky. स्काई में नहीं, but from the earth toned raggedly open. But जमीन के बीचों बीच जिसने जमीन के चिथड़े उड़ा दिए. Earth turned raggedly open. Clear? In the second stanza, human shadows dazed and lost pitched in every direction displaced. और ये जो आपका ब्लेज हुआ, ये जो आपका एटॉमिक बम एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? ह्यूमन शेडोज डेज्ड, सारे लोग इधर उधर चित्थर पिथर गए. This sun, because has not risen from the east, smashed in the city's heart, and immense wheels of death squat sun cars spinning down and apart in every direction. तो ये ब्लेजिंग ने, ये एटॉमिक बम एक्सप्लोजन ने सबको इधर उधर बिखरा दिया. सब इधर उधर भाग रहे हैं और डेथ का स्पिनिंग डाउन, मतलब कहते हैं ना मौत का चक्रव्यूह स्टार्ट हो गया, मौत का तांडव स्टार्ट हो गया उस जगह पर. क्लियर? Instant of sunrise and set, vision annihilating flare, one compressed noon. सन बार बार यहाँ पे सन के सिंबोलिज्म के साथ खेला जा रहा है. सन कैसे होता है? नेचुरल जो प्रोसेस होता है, इट कम्स, इट टेक्स इट टाइम, इट स्लोली गोज अवे. क्लियर? सूरज आता है, रोशनी देता है, इट इज लाइफ गिविंग टू ह्यूमन बीइंग्स. बट ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन मेड सन जो है, जो एटम बम है, वो इंस्टेंटली राइज हुआ, इंस्टेंटली सेट हो गया. वो एटम बम एक्सप्लोजन हुआ और फटाफट से वो बुझ गया. और उस फटाफट में ही विद इन 5 मिनट्स उसने पूरी जगह को तहस नहस कर दिया. सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन नेचर and human made, man-made things, and how nature is life-giving, nourishing, but man-made sun was destroying. That's the comparison we could see here. And then what happened? And then it was not human shadow that leaned and paled and died. It was men suddenly become as mist then gone. Again the comparison. sun की रोशनी में शेडो कैसे होती है? पहले बड़ी होती है, जैसे 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 सूरज ऊपर जाता है, इट गोज डाउन, छोटी होती है.
So natural process, and finally it goes. It's a slow process, natural process, but again, atomic bomb, what has it done? It was meant suddenly become as mist then gone, but atomic bomb, human मेन मेड बम ने सडनली सारे इंसानों को मिस्ट की तरह बना दिया, धुएं की तरह कर दिया. The shadow stays burned on rake stone these vacant street, and streets सब vacant हो गया, and बस shadows रह गई. A sun conjured by men converted men to air to nothing. And here the contrast, here the irony, here the satire lies. Sun made by men, atomic bomb was made by men, and जो इंसान ने बनाया उसने ही इंसान को हवा में तब्दील कर दिया, nothingness में convert कर दिया. So how powerful man-made sun was, but how it has converted men. जो इंसान ने बनाया उसने इंसान को ही नहीं छोड़ा. That's the irony. White shadow signed on the black rock give black man's whiteness to himself, witnesses to himself, and then white shadow. So here व्हाइट शैडो जो था वो ब्लैक रॉन्ग के अगेंस्ट आके, एंड कैसे वो मैन खुद ने विटनेस किया, वो कैटास्ट्रॉफी, वो डिस्ट्रक्शन, वो ह्यूमन ने खुद विटनेस किया. दैट्स व्हाट द पोएम इज हाईलाइटिंग. सो इफ वी जस्ट से फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, सन का कॉन्ट्रास्ट सिंबोलिज्म चल रहा है, ह्यूमन वर्सेस नेचुरल. नेचुरल सन कैसे आता है, कैसे रोशनी देता है, कैसे जाता है, बट ऑन द अदर साइड उस दिन कुछ अलग हुआ. उस दिन ह्यूमन मैन मेड सन था, और उस मैन मेड सन ने पूरी जगह को चिथर पिथर कर दिया, इंसानों को शेडो में कन्वर्ट कर दिया, ब्लैकनेस व्हाइटनेस सबको तिथर पिथर कर दिया. एंड देन इट इज बीन कंपेयर्ड कि ह्यूमन सन ने, जो मेन ने बनाया था, जो इंसानों ने बनाया था, उसने इंसानों को ही तबाह कर दिया. सो दैट्स द पोएम व्हाट इट इज रेफरिंग टू. I hope it is clear. Now we see the original version that जो हिंदी में लिखा गया था, and हिंदी में ये पोएम इस तरीके से है. एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पे नहीं, नगर की चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से. First stanza you can see how the translation happened, that सूरज वहां से नहीं यहां से निकल रहा है. छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी, वो सूरज नहीं उगा था पूरब में, वो बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए दशो दिशा में. सेकेंड स्टैंजा यू कैन रिमेम्बर दैट इट केम, सारी छितर बिथर हो गया. दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू से. कुछ क्षण का वो उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी थी. कुछ क्षण, कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल एंड मैन-मेड, कि वो क्षण भर के लिए आया और क्षण भर में ही तबाह कर दिया. फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए. सो सन क्या करता है और ह्यूमन मैन-मेड सन ने क्या किया? छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सूख गया. पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई ज्वाला मानव की साखी है. सो द लास्ट लाइन, दैट इट विटनेसेस द डिस्ट्रक्शन. जो शेडोज हैं, जो डिस्ट्रक्शन है, वो सारे के सारे ह्यूमन मेड मैन मेड की तबाही का प्रमाण है. दैट्स द पोएम रेफरिंग टू. क्लियर? आई होप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देख के और क्लैरिटी हुई होगी. सो हिरोशिमा के उस एक दिन का चित्रण है, एक दिन का पिक्चराइजेशन है, हाउ इट हैज हैपेंड, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचुरल वर्सेस ह्यूमन मेड, एंड व्हाट वाज द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट दैट इट हैड ऑन ह्यूमन लाइफ. दैट्स द पोएम इज टॉकिंग अबाउट. नाउ क्विकली अंडरस्टैंड द पोएम इन लिटिल मोर डेप्थ. सो हिरोशिमा अगेन ने लिखी है, पावरफुल पोएम है, heroic aftermath of atomic bombing of Hiroshima during World War II. विविड इमेजरी, आयरनी है, थॉट प्रोवोकिंग मेटाफर है to devastating impact of the bomb on innocent people of Hiroshima. It criticized the inhumanity and brutality of war. Themes and message same है. Central themes catastrophic consequences of war पे आता है कि एटॉमिक वेपन के क्या सिग्निफिकेंट कैटास्ट्रोफिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. हॉरिफाइंग डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ,
anti-war statement. It is an anti-war poem emphasizing the need for peace, compassion, and empathy. Imagery and symbolism. Image of sun conjured by the men represent the explosion of moon. Sun बहुत ही important यहाँ पे image है. Binding light akin to the rising and setting of the sun. Then human shadow. शेडो वाला इमेज आता है जहां पे फिजिकल शेडो ऑफ विक्टिम एंड मेटाफोरिकल शेडो ऑफ ह्यूमैनिटी डार्क साइड. तो शेडो दोनों चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है. एक तो विक्टिम साइड कि कैसे लोग इधर उधर बिखर रहे थे, और दूसरा ह्यूमन की डार्क साइड, ह्यूमैनिटी की डार्क साइड की शेडो का भी मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है. एक्शंस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड people who have allowed such things to happen. Then burned on rock, stones of these vacant streets symbolize the indelible scars left by the bomb on city landscape. तो ये वाली जो इमेज है कि रॉक पे तो पत्थर, दीवार सब उस चीज की गवाह है. That's what the poem is trying to say here. Clear? Then irony on contrast. Contrast है man-made sun with natural sun. We have already talked about this. Then finally modernist influence. ये पोएम की जो स्टाइल है वो मॉडर्निस्ट टेक्निक के साथ दी गई है, एंड इसमें ह्यूमनिस्ट एंड सोशलिस्ट लर्निंग है दैट वी शुड नॉट गो फॉर वॉर. वॉर इज सो डिवास्टेटिंग, सो कैटास्ट्रोफिक दैट it is an anti-war statement that how much it can impact human society. So with this we can conclude Hiroshima by Agai is a haunting and emotionally charged poem that vividly captures the devastating impact of atomic bomb on the city and its people. Through its powerful imagery, irony, and modernist style, the poem serves as a poignant anti-war statement, urging readers to reflect on the consequences of human cruelty and the importance of compassion and peace in the world scared by violence and destruction. With this, we have come to the end. I hope this poem was clear. And with this, let's wind up the poem and bye-bye.